So we'll start with today's webinar. I would like to welcome our Head of Department, School of Business, Dr. Monica Suri, Mr. Kishore Sarma from Career Development Cell of Oro University, Surat, and our prominent speaker for the evening, Dr. Urjit Kavi. I'll just give you all a brief introduction about him. So he has been the HR professional with 12 plus years of experience, and he's currently heading Gujarat and Madhya Pradesh as regional HR head for Sodexo On-Site Services India Private Limited. As an avid learner, he has also completed his PhD, and he is highly focused HR professional who has successfully conducted more than 500 trainings and did more than 4,000 recruitment in his career and have managed a workforce of 7,000 people. Sir, I would really thank you for giving us some time and accepting our invitation to come forward and interact with our students and give them certain guidelines on how an interviewer would look at the candidates. So we are really looking forward to some key insights. But just before that, I would like to ask Dr. Monica Suri to give a brief introduction about Oro University. Please, ma'am. Okay, thank you, Rucha. And Dr. Kavi, we thank you heartily for your presence on webinar. And we all are looking forward for this webinar because the topic is quite relevant and feasible when it comes to today's situation of COVID-19. You might be knowing Oro University a lot, but I'll do my duty of explaining to you Oro University very briefly. So it was established under the Gujarat State Private Universities Act 2009 and approved under Section 2F and 22 of UGC Act 1956 under Regulations 2003. So in Oro University, presently we have 7 schools, and School of Business is one of the schools which is hosting this webinar. Another school which we are adding to umbrella of Oro University from this academic year is School of Sciences, which we are going to come up very soon with. And along with that, in School of Business, we are running PG and UG programs along with PhD in management. In PG programs, we are offering 2 years MBA program, full-time 2 years degree. And along with that, from this academic year, we are also coming up with one new master's program on Master of Family Business Management and Entrepreneurship Management, which we are not opening only for the students or professionals who are coming from family-owned businesses, but also the employees who are working within the family setups, like they're on their leadership various roles, functional roles and operational roles as managers, or maybe on leadership roles as well. Along with that, we are having 3 years BBA program and BCom program as well. Along with that, we are also offering 2 PG diplomas as 1 year option to the students. One is PG diploma in family business management, and another one is PG diploma in financial markets. Because we are also offering combination of 3+1 to students, many times they just want to pursue 1 year of masters. So because of that, we are giving them 3+1 option. For example, BBA plus any one diploma, they can choose out of financial markets and family-owned businesses. The teaching pedagogy at School of Business is highly experiential in nature, and it is truly aligned to the philosophy of Oro University and the vision of Oro University, which talks about integral and transformational approach to learning and the holistic development of our students in mental, physical, vital, and spiritual aspect. And that is truly the core of principles that we follow strictly as per Shri Aurobindo and Divine Mother's teaching learning philosophy, specifically in the area of integral management. And we have good associations nationally, internationally, globally, not only with the academic institutions, but also with CII, South Gujarat Chamber of Commerce, Gift City. So we have made meaningful collaborations so that it should actually enhance the employability of our students in various specializations, and they should be acceptable, specifically for the purpose of internships and placements. And we have incubation cell in place, wherein we got a grant of more than 1 crore from Gujarat government under SSIP scheme, and we are taking full advantage and benefit of that incubation cell at Oro University. And few of our students' projects, not only from School of Business, but across the university, various schools of university have been appreciated and approved
and have been funded as well under this particular SSIP scheme. So largely our focus is on simulation-based learning, project-based learning, expert lectures and guest distinguished lecture series, like we are holding one with you, expert like you from various diversified areas. And day after tomorrow or day after, I think we have one with Sodeji, who is the managing director of Amul, GCMMF unit in Anand. So these are few of the credentials which we are holding as School of Business, and many more to come. And I'm sure whatever insights you're going to share with us, that will be quite useful and valuable for the students, not only who are going to be placed, but also for the existing students who can start right from today. They are grooming right from first semester, because I feel that they should not only start thinking of interview once they reach to the final semester. I think that's a very ongoing process that they need to take care of and ensure right from the beginning. And for your information, we have done individual profiling of each student in the form of a competency mapping, so that our CDC is working very closely with School of Business to deliver some special talks with experts, special grooming sessions from experts like you, and in coordination with the internal faculty who are equally experienced and coming from various diversified areas. So that's a very little introduction about my school. So it's over to you now for the session which we have commenced today. And I think it will be good if you just start throwing your thoughts on that particular topic first, and then we'll take up the question answer round at the end. And I think let Rucha decide as the coordinator what will be the protocol. So I'm just handing over the session to Rucha for the proceedings. Yeah, it's over to you, Rucha. Yeah. Thank you, ma'am. So yes, sir, you can go forward with your presentation right now, and then as per our flow, I will be asking you certain questions from my end, which I feel that students might be helpful with. And also we have a question and answer chat box over here. So some of the students might be posting their questions over there. So we'll be addressing those questions as well. So in the meanwhile, just a guideline to the students regarding the presentation or regarding the discussion we are having. If you have any queries or any question, you can go ahead and post your question in that question and answer box. All right, over to you, sir. Okay, good evening, folks. Nice to be a presenter here on the topic of the effective tips for interview. Trust me, this is one hell of a topic. It requires something that you have not done in the past. किसी ने कभी ना कभी इंटरव्यू दिया ही होगा, भले पास हुए थे या फेल, वो अलग क्वेश्चन मार्क है. But yes, someone would have definitely given the interviews. And this is something where you can enhance up your skills and how to get selected in any particular job role. That is what I would be trying to guide you on. Why I am saying trying to guide you is that it depends upon what exactly the interview is willing to see in yourself. It is not something that what you are trying to present in. Because after all, he is on the upper hand. He is going to be the person who is going to select you for the job. And it is not going to be you who are offering yourself for the job. It is going to be he selecting you for that job. So that is why he always has a bit of an upper hand. But how to identify what is in the flow, how the interview is going, how should you be prepared on the aspects of the interview, what you should be having a knowledge about before going for the interview, is what I'll be trying to guide you down on the today's. So if I go ahead, then there are few of the steps. That is basically while you are trying to get any kind of an interview call letter or some company calls you for the interview, there are basic few things that you should be aware about it. And that, these steps that I am defining here right now are something that would definitely help you crack that interview. So first and the foremost thing that comes across is the planning and preparation. And then it comes with the building rapport about how the interview is going across, or how the interview is taking it across, or what kind of answers that you are trying to give. Again, there is also one of the very important aspect that how you are guiding that conversation. Is the conversation going on a fruitful note? Is the conversation taking place in some negative aspect? How can you change that kind of a conversation? How can you make it a bit of a positive is what we'll be discussing in that.
Then there is this developing information. While you are giving the interviews, you'll definitely gather up some information that what exactly the person is looking into a candidate. Either it could be in a formal way or it could be in an informal way. So both of the things we'll be discussing again. The biggest and the major setback while giving any kind of interview is fear of silence. That could be from the both the ends. When the interview is getting silent, we get either tense that what exactly is happening in the situation, or when the interviewers ask you some question, you don't have the answer, then we also get into a silence mode. That also creates an impact during the interview. And one of the important aspects is art of listening. So that is also what we'll be going through. Now then there is this analyzing the data, whatever interviews you have given. Once you analyze it, then you'll come to know that what kind of a feedback you are expecting the interviewer to give you once the interview is over. Is it a positive? Is it a negative? Or is it something like a mixed response? So that on the basis of that, analyzing the data is going to be equally important. The subjective view is something that would define across that how the interview flow has gone and what exactly the interviewer was asking and whether you have responded it properly or not. Concluding in the interview is the final aspect, is the nail in the coffin, wherein the person definitely gives you the final answer whether you have been selected or not. Based on the response that happens in the concluding the interview step, we finally go with the follow-up of the interview step. So we'll be going step by step, but before even going ahead with the interview, I would like to take you all through the industries that are working at present and what traditional approaches or what kind of approaches they look while conducting the interviews. So if we go ahead, there are different type of organizations. One of them is the established public sector organizations. Now these organizations are somewhat that are listed on the stock exchanges and they have more than around 5,000 of employees working for that organization. The methodology of interview is quite simple. They keep across a panel interview on a very specific day. They call across a panel of 6 to 7 members, which comprises of the HR department. If in certain cases required, the reporting managers are there, the head of departments are there. Certain high level of interviews also includes up the unit heads. So these kind of people be a part of the panel interviews. Their expectancy is clear that as they are established into the organization and being into the stock exchange listed, they don't want to taint up their image. So they are very much firm on their values. So if you want to crack such kind of an interview with public sector organizations, I would definitely advise to go through their values first and understand what they are into the market and why they are into the market with what kind of a strength. And based on that, go ahead and give the interviews. Interviews are usually done in a fewer rounds. The first round is basically a telephonic call or the interview call letter comes across. Then you visit up them. A panel round interview happens across. Then the next interview that comes across is either with the HR department or with your department head based on the requirement. Once that interview is over, it directly comes down to the negotiation phase if all the previous rounds have been concluded. If the negotiation successfully happens, you get the offer and you get paid with the organization. Now, as being into the stock exchange, they have to ensure that there is a competent authority and there is a no clash kind of a scenario. So basically they give this kind of a job openings into the newspaper or the public domains. So usually in the job portals, you won't be able to find such kind of an opening. If you refer up the Uttar Gujarat Wheat Corporation Limited or being in the Surat Dakshin Gujarat Wheat Corporation Limited, they post down this kind of requirements in the newspaper that we are looking for X number of engineers, we are looking for X kind of a supervisors to mention across there. So that kind of a requirements you'll be definitely able to find up there. An interview call process is predefined. They'll send you either the call letter through email or either through a courier on your home. So this is basically a typical scenario wherein they would be sharing with you the details of the job before even getting for the interview calls. Then there is this established private organizations. Now these organizations are some organizations who have a staff strength of almost like 1,000 employees. They are not stock exchange listed, but they have a very traditional approach again. Their expectancy is to adhere to the growth that they have already accelerated in the back years, and interviews are usually done in multiple rounds. Why they are doing it in multiple rounds is they won't give across a panel for you to interview. It would be either the department head and HR only, and not it's a very high possibility that not all the people would be available. So you'll be called in multiple times. That you'll be rescheduled across. You'll be meeting 1 or 2 persons today, next 1 or 2 persons, because they are very much focused on the financial aspects of their organization because they are still in a growing phase.
So what they hope from you is that if we are paying you X number of salary, it should be justified. So that is why they keep on conducting multiple interviews. If you are going to land up in an interview or you are getting a call letter from such organization, the biggest virtue that you would be requiring is patience. Because once you have given the interview, there might be many more candidates that they would be interviewing, because of which you might not even get an immediate response. कभी-कभी तो 1 महीने बाद भी अचानक उनको याद आएगा कि ये एक बंदा इंटरव्यू देके गया था, चलो आज उसको बुलाते हैं. तो ये सिनारियोज रहते हैं वहां पे. तो अगर आपको चाहिए कि कोई ऐसी कंपनी में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू वेट अ बिट. कब उनका कॉल आएगा ये जरूरी नहीं है, बट ये आपको पता जरूर चल जाएगा कि दोबारा कॉल आ सकता है जब हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस करेंगे, द फाइनलाइजिंग ऑफ द इंटरव्यू या कंक्लूडिंग द इंटरव्यू. उस टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके बेस पे आपको आइडिया आ जाएगा. Then there is the small and medium enterprise organizations. Typically 250 से 300 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन रहती है. यहाँ पे डिसीजन मेकर्स क्योंकि लेस है, तो आपके लिए ये होगा कि एक ही राउंड में शायद कॉल आ जाए. बट दे आर रिक्वायरिंग कि आपने क्या क्या किया था, आपके अचीवमेंट्स क्या है, व्हाई व्हाट यू वुड ब्रिंग टू द टेबल इफ यू आर जॉइनिंग माय ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सारी चीजों पे उनका फोकस ज्यादा रहता है. और यहाँ पे एक थोड़ा आपके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है, बिकॉज दे आर स्टिल इन अ सिचुएशन. जब वो लोग थोड़ा बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी मनी इज अ वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट. अगर वो लोग आपको एक्स नंबर ऑफ सैलरी देते हैं कि दे एक्सपेक्ट एक्स प्लस वाई रिटर्न, कुछ उनको एक्स्ट्रा चाहिए ही होता है, बिकॉज दैट इज हाउ दे वुड बी टेकिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन टू हायर लेवल्स. तो यहाँ पे थोड़ा आपके लिए परफॉर्मेंस का प्रेशर जरूर रह सकता है. एंड देन देयर इज दिस बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट, द स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस. अभी स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपके लिए एक बात समझ लीजिए कि ये बिल्कुल जरूरी हो जाएगा कि आप डे 1 से परफॉर्मेंस दे रहे हैं. तो अगर आप पहले सीखना चाहते हैं, आप पहले सेटल होना चाहते हैं, प्लीज एंश्योर दैट यू आर नॉट ज्वाइनिंग द स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस इमीडिएटली. एसएमई से स्टार्ट करें या जरूरत पड़ने पे प्राइवेट सेक्टर से स्टार्ट करें, जिसके बेसिस पे आगे आप लोग जा सकते हैं. अभी अगर हम लोग बात करें कि आप इंटरव्यू देने से पहले क्या क्या आपको प्लानिंग करनी चाहिए या क्या क्या आपके पास प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आप जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसी टाइम पे आप देख लें कि वो ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या नहीं. देखिए, मैंने सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग अलग प्री रिक्विजिट्स होती है, इंडस्ट्री के बेसिस पे अलग अलग नीड्स होती है. जैसे अगर हेल्थ केयर की बात करें, तो दे हैव अ वेरी पेक्युलर टास्क कि उनको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई लेवल पे मेंटेन करने होते हैं. बार बार ऑडिट्स आते रहते हैं, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स आता है, क्वालिटी ऑडिट्स आते हैं. तो ये सारे ऑडिट्स वहाँ पे बहुत ज्यादा रहते हैं. तो दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस अक्रॉस इन दैट सिचुएशन इज कि जब वहाँ पे सब लोग इंटरव्यूज देते हैं, तो उन लोगों को इनिशियली तो लगता है कि दैट यस आई एम डूइंग अ वेरी नोबल जॉब, बट एक लिमिट्स के बाद 4 साल 5 साल के बाद देन यू स्टार्ट टू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि मैं ऑडिट्स में से तो बाहर ही नहीं आ रहा हूँ. अगर आप लोग ऐसी कॉज से फील कर रहे हैं, तो ट्राई टू सिलेक्ट अप द आईटी सेक्टर. आईटी सेक्टर में ऑडिट्स आते ही नहीं है, बट आईटी सेक्टर्स में आपके लिए ये एक और बेनिफिट जरूर रहेगा कि वीकेंड्स भी ऑफ रहता है, तो यू वुड बी इवन एबल टू स्पेयर अप द टाइम विद योर फैमिलीज. तो ऑर्गेनाइजेशन आप आपके इंटरेस्ट के बेस पे चूज कीजिए. ऑर्गेनाइजेशन चूज करिए, उस टाइम पे खास तौर पे ध्यान रखिए कि कंपनी क्या क्या फैसिलिटीज दे रही है, नहीं भी दे रही है तो यू आर एबल टू एडजस्ट इट अक्रॉस और नॉट. प्लानिंग फॉर इंटरव्यू इज समथिंग कि अगर आपका 10 बजे इंटरव्यू है, तो मैं ये डेफिनेटली नहीं बोलूंगा कि आप 9:30 बजे पहुंच जाए. बहुत इंटरव्यूज ये बोलते हैं, बट आई वुड नेवर से कि 10 बजे का इंटरव्यू है तो आप 9:30 बजे पहुंच जाए. बट ऐसा भी ना हो कि 10 बजे का इंटरव्यू आप 10:30 बजे पहुंचे. ट्राई टू रीच 5 और 10 मिनट्स अर्ली. अगर आप ज्यादा जल्दी जाते हो, तब भी इंटरव्यूअर के दिमाग में ये सोच आएगा कि इसको जॉब की जरूरत है, तो नेगोशिएशन के टाइम पे इश्यूज आ सकते हैं. लेट जाएंगे तो ये एटीट्यूड लगेगा कि आप बहुत कैजुअल है, यू आर नॉट वेरी मच डेडिकेटेड और यू आर वेरी मच नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट योर जॉब रिक्वायरमेंट्स है. तो इसके चलते उनके ऊपर ये भी एक नेगेटिव अप्रोच रहता है. ये बात को ध्यान में रखते हुए कोशिश कीजिए कि जो टाइम आपको सेट किया गया है उसी टाइम पे जाएं. ड्रेस कोड्स की बात करें तो ऑफ कोर्स सब लोग बोलते हैं कि फॉर्मल्स में जाना ज्यादा सही रहता है, बट नो अश्योरेंसेस. आप सूट पहन के जाओ या टाई पहन के जाओ या बो टाइज लगा के जाओ, टाई पिन पहन के जाओ, हैंडसमली ग्रूम्ड होके जाओ, नो अश्योरेंसेस कि स्टिल यू आर गोइंग टू गेट लैंडेड इन दैट जॉब. तो इट्स नॉट अ कंपलसरी कि आप ड्रेस कोड एडर करें, बट यस एटलीस्ट बीइंग अ फॉर्मल, सूट ना पहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट जीन्स पहन के मत जाइए. जीन्स वुड नॉट डेफिनेटली लैंड यू इन अ जॉब विद अ सच काइंड ऑफ अ कॉर्पोरेट एटीट्यूड.
और खास तौर पे ये रिसर्च करके जरूर जाए कि जो इंटरव्यू के लिए रिक्वायरमेंट्स है उसमें जो भी स्किल्स उनके पास है, शॉर्ट में उन्होंने सिनॉप्सिस कहीं ना कहीं पे दिया ही होगा, या तो आपको जब इंटरव्यू के लिए कॉल आए तभी पूछ लीजिए कि क्या क्या चाहिए आपको, कि मैं सेट हो पाऊंगा या नहीं, वो एनालिसिस कर लीजिए। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि ये कंपनी में ज्वाइन करना ही है, तो वो जो भी स्किल्स उन्होंने थोड़ी मांगी है उसका थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा और रिसर्च कर लीजिए। बेस्ड ऑन दैट यू डेफिनेटली टेक अक्रॉस इन द फर्दर स्टेजेस ऑफ द इंटरव्यू। एक जो बात है, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तब सबसे इंपॉर्टेंट रहता है बिल्डिंग रैपो। आज आपको पता नहीं है कि आज शायद आप मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने आए, आज आपके साथ मेरा कैसा इंटरव्यू रहता है, वो इम्पैक्ट मुझे 4 साल बाद कोई और कंपनी में बैठा हूँ तब भी आप वहां पे मुझे इंटरव्यू देने आएंगे, तब वहां पे भी ये इम्पैक्ट कर सकता है कि ये बंदे को मैंने इंटरव्यू किया था, दिस वाज व्हाट वाज हिज एटीट्यूड, या ये था नहीं सही था। दैट गिव्स यू अ वेरी बैड काइंड ऑफ इम्पैक्ट। इट्स ऑलवेज एडवाइसेबल कि आप पहले एक बार देख लीजिए कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एक हेल्पफुल एटीट्यूड रखिए। आसपास में आपके साथ ये भी पॉसिबल है कि 4-5 और लोग इंटरव्यू के लिए आए, ट्राई टू डू द कन्वर्सेशन विद देम, उनसे बात करिए, उनको बताएं कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दिस इज हाउ वी कैन टेक इट फर्दर। उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए, कुछ 2 चीजें आप उनसे भी सीख सकते हैं। जो ये हेल्पफुलनेस और फ्रेंडलीनेस का एटीट्यूड आप जो दिखाते हैं ना, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन ये जरूर देखती है कि यू आर नॉट बिहाइंड ओनली सेल्फ गोल, यू आर अ टीम प्लेयर, वो यहीं से आपको दिख जाता है। बहुत मूवीज में या कहीं कहीं पे भी आप लोगों ने ये देखा जरूर होगा कि इंटरव्यू होता ही नहीं है, वेटिंग लॉज में डिसाइड हो जाता है किसको ऑफर करना। व्हाई? बिकॉज दैट इट्स नॉट अ फैक्ट इन द इंडस्ट्री, ऐसा कभी होता नहीं है, बट फिर भी दैट गिव्स अ वन ऑफ द फाउंडेशन कि हाँ ये बंदा मदद करता है तो ये कहीं ना कहीं आगे चल के दूसरे लोगों की भी हेल्प करने की कोशिश करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर गलती से आपको ये बोला जा रहा है कि इंटरव्यू डिले हो रहा है या समथिंग लाइक दैट इज, कि कोई आपको पूछ रहा है कि ठंड लग रही है या एसी ज्यादा है, ट्राई टू बी एडेप्टिव। उनको दिखाने की ये कोशिश करो कि हम आपकी जो सिचुएशन करंटली है उसमें मैं सेटल्ड हूँ। आई एम नॉट फोर्सिंग कि कभी ये पॉसिबिलिटी भी है कि अगर आपका इंटरव्यू 11 बजे शेड्यूल हुआ था, शाम को 6-7 बजे तक भी आपको बिठा रखा है और फिर बोलते हैं कि आप कल आओ इंटरव्यू लिए, ये पॉसिबिलिटी भी है। बट वी नीड टू ऑल्सो लुक ऑन द अदर एस्पेक्ट कि कुछ ऐसा चैलेंजेस आ गया था जिसके चलते ये लोग नहीं आ पाए थे इंटरव्यूज कंडक्ट करने के लिए। ट्राई टू सी अगर आप नेक्स्ट डे पे एडजस्ट कर पा रहे तो, अगर नहीं कर पा रहे तो पोलाइटली उनसे बात कीजिए कि मैं थोड़ा और वेट करने को तैयार हूँ, अगर आज ही हो जाता है, आई एम नॉट अवेलेबल टुमारो, या जो भी रीजन है आप उनसे एक बार डिस्कस कीजिए। ये जो एटीट्यूड रहेगा आपका डिस्कशन का, ट्रस्ट में एक बार और दोबारा कॉल आएगा अगर आपका सीवी उनके सिनेरियो से मैचिंग था, they'll definitely give you a call to understand कि आप आने को अभी भी तैयार हो या नहीं। Try to be adaptive। अगर हम आगे की बात करें कि कन्वर्जेशन जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे आप जैसे ही कोई ऑफिस में एंटर कर रहे हैं तो रिसेप्शन पे आप बैठे हैं, रिसेप्शनिस्ट के साथ आप जो इंटरेक्ट करते हैं, जो क्यों शायद आपके लिए पानी लेके आए आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, या प्रिलिमिनरी राउंड जो एचआर ने इंटरव्यू लिया है उनके साथ आप बात कर रहे हैं, या आपके डिपार्टमेंट हेड्स के साथ जब आप बात करते हैं, ये सारे टाइम के तौर पे आपका जो कन्वर्सेशन है दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूअसली बीइंग मॉनिटर्ड। मैं ये कभी आपको नहीं बोलूंगा कि यू ट्राई टू बी फ्लुएंट इन एक्स लैंग्वेज, यू ट्राई टू बी फ्लुएंट इन वाई लैंग्वेज, बट डेफिनेटली बी अ फ्लुएंट इन व्हाट नॉलेज दैट यू हैव। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज ऑनेस्टली बता दीजिए कि सर ये मुझे नहीं पता, या मैडम ये मैंने नहीं किया है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, बट आई एम वेरी मच श्योर दैट आई कैन स्टिल लर्न इट अक्रॉस। मैं ये सीखने को तैयार हूँ अगर आप मुझे मौका देंगे तो। एक मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, दो मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया था, बिकॉज आई हैड नॉट स्टडीड फ्रॉम इंडिया, मुझे लेबर सिस्टम नहीं पता था। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, फैक्ट्रीज थी तो फैक्ट्रीज के लिए तो बहुत सारे लॉज लागू पड़ते थे, तो मुझे नहीं पता थे। आई गिव देम अ वेरी गुड आइडिया कि सर मेरा एजुकेशन थोड़ा अलग है तो मुझे नहीं पता है, तो दे इमीडिएटली टोल्ड मी कि देन डू वन थिंग, यू गेट इट रिसर्च एंड कम बैक टू अस फॉर द इंटरव्यू टुमारो। I simply said कि हाँ सर कोई बात नहीं, I'll get it research across, I'll come back for interview tomorrow, but give me 1 or 2 days more to research across on thorough note। एक हफ्ते बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ and trust me I cracked that interview and I got landed in that job। नहीं पता है तो क्लियरली बता दो, क्योंकि अगर आप बता दोगे कि मुझे पता है और फिर पीछे से पता चलेगा कि नहीं पता था, that's going to taint up your career। क्योंकि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई बंदा ये जरूर बोलेगा कि उसने उस टाइम पे झूठ बोला था। That is a very negative aspect। कभी ना कभी ये हो सकता है, तो नहीं पता है तो क्लियरली बताइए कि नहीं पता है। If you know, give a very good confidence that sir I am very much aware about this thing and I'll definitely take care if given an opportunity। Important aspect है taking charge of conversation।
व्हेन इन अ सर्टेन स्टेट क्लाइंट आपको बोलेगा कि आप ये जॉब प्रोफाइल के लिए इतना काम करने को तैयार हो, या फिर यू हैव टू वर्क ओवरलोडेड, या फिर आपको कभी कभी एक्सटेंसिव वर्किंग आवर्स करने पड़ेंगे, या आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है जिसमें आप लोगों के पास उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप ये बोले कि हम करेंगे। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो क्लियरली उनके सामने रीजन भी पुट फॉरवर्ड करिए। ऑफ कोर्स जेन्युइन रीजन होने वापस कंपलसरी जरूर रहते हैं, बट मेक श्योर कि वो कन्वर्सेशन जो है वो ऐसे एस्पेक्ट में ना लेके जाएं कि उन लोगों को ये लगे कि नहीं, ये बंदे को लेना ही नहीं है। नाउ द बेस्ट एंड द पॉसिबल वे इज इफ यू आर एबल टू डू कमिटेड कि मैं कर दूंगा। अगर नहीं कर पा रहे तो गिव देम अ टाइमलाइन कि सर मैं फिलहाल नहीं कर पा रहा हूँ, या 3-4 महीने बाद ये कर पाऊंगा, दिस इज व्हाट इज माय सिनेरियो। बी अ वेरी ओपन माइंडेड, क्योंकि जितना आप खुल के उनके साथ डिस्कस करेंगे दे वुड फील दैट यस दिस पर्सन इज वेरी ओपन एंड ही वुड नॉट हाइड एनीथिंग इन द फ्यूचर। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जरूर इम्पैक्ट करता है कि कुछ अगर गलती आपसे हो गई है तो आप सामने आके बोल दे, ना कि कोई और आपके बारे में जाके बताए। तो इसके चलते ये बहुत जरूरी रहता है कि आप जो भी बता रहे हैं उनके साथ खुल के डिस्कस करें। इंटरव्यू इज नॉट समथिंग कि जिसमें आपको इस तरीके से इम्पैक्ट किया जाएगा कि यही बंदा कर पाएगा या ये नहीं कर पाएगा, नहीं कर पा रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा। ये जरूर वहां पे नहीं डिस्कस होता है। दैट कम्स अक्रॉस आफ्टर योर 6 months ऑफ प्रोबेशन पीरियड इज ओवर। तो तब तक के लिए आपके पास टाइम है, तो आप जरूर उस टाइम पे कोशिश कीजिए कि ये सीख ले कि क्या कर सकते हैं या क्या ना करें। नेक्स्ट, और जो मैंने पहले आपको बताया, ये एक सबसे बड़ा सिचुएशन है जिसमें फियर ऑफ साइलेंस इज क्रिएटिंग अ वेरी लॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द डिस्कशन एंड द ऑनगोइंग इंटरव्यू। कभी कभी ये भी जरूर होता है कि जो सीवी आपने बनाया है बहुत लेंथी है, तो जिसको वो पढ़ रहा है इसके चलते थोड़ा एक कम्युनिकेशन गैप हुआ है, कि वो पढ़ रहा है कि ही इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई व्हाट ही वांट्स टू आस्क यू। दैट्स अ समथिंग कि वो समझने की कोशिश कर रहा है, तो दैट्स ओके। बट यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क जरूर आप रेड फ्लैग के तौर पे रेस कर सकते हैं कि वो बंदा आपका इंटरव्यू क्यों कर रहा है जब उसने आपका सीवी देखा ही नहीं है। अगर देख लिया होता तो उसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो दैट इज ऑल्सो वन रेड फ्लैग। तो यहाँ पे आपको कन्वर्सेशन ऐसे स्टेट करना होगा व्हाट यू वुड बी एबल टू ब्रिंग टू द टेबल इफ यू आर जॉइनिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। आप क्या वैल्यूज लेके आ रहे हो, आप क्या उनके लिए अच्छा कर पाओगे। दैट इज वन इम्पोर्टेंट थिंग। अगर वो कुछ पूछ रहा है जो आप जवाब नहीं दे पा रहे, आपको सोचने में दिक्कत हो रही है, यू कैन डेफिनेटली इन्फॉर्म टू हिम कि सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट आई स्टिल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। एंड दैट्स समथिंग कि वो आपने जब एक बार बोल दिया है कि आई गेट बैक टू यू, तो यू डेफिनेटली नीड टू गेट बैक टू देम। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार बोल दिया है कि मैं आपके साथ वापस आऊंगा, आई गेट बैक टू यू, और आप ये भूल जा रहे हैं कि मैंने ये कुछ कमिट किया था। आप भूल जाएंगे तो आप वो जॉब को भी भूल जाएंगे, क्योंकि और इंटरव्यू के लिए ये स्पेसिफिकली रहेगा कि आपने एक बार बोला है कि आप आएंगे तो आप वापस आएंगे। तो दैट इज व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग यू टू रिवर्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग। पहले उसको बोल लेने दीजिए। वी आर नॉट गोइंग ऑन अ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड ऑफ कौन बनेगा करोड़पति। यहाँ पे हमारे पास टाइम ही टाइम है, उसको एक बार बोल लेने दीजिए कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क यू। Many interviews that I have taken, employees come across with a situation, जो इंटरव्यू भी जो होता है, जो सामने इंटरव्यू देने आया है, वो अभी क्वेश्चन खत्म करने से पहले ही बोल देते हैं, नहीं सर आई एम वेरी मच अवेयर कि आप क्या पूछना चाहते हैं, आई अंडरस्टैंड दिस एंड आई विल डेफिनेटली डू दिस। ट्रस्ट में वो पीछे से नहीं कर पाता है। रीजन बिहाइंड दैट इज दैट ही हैज नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन इटसेल्फ फर्स्ट। Jumping to conclusions is something that is not appreciable, that is not acceptable, considering the fact कि पीछे से भी कोई डिसीजन लेने में आप जल्दबाजी करेंगे, जबकि कुछ चीजें आपको सोच के करनी होती है। तो that is why it is equally important कि उसको एक बार क्वेश्चन खत्म कर लेने दीजिए, then across share the details with him or her, जो भी आपका इंटरव्यूअर है उनके साथ उसके बाद उसका रिस्पॉन्स कीजिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट कि अगर आप ये ठीक से कर लेते हैं 95% चांसेस है कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। The next thing is analyzing data. अभी ये जो आप डेटा जो हम लोग बात कर रहे हैं, there is no any hard kind of a data, ना पेन एंड पेपर पे आप लोगों ने कुछ नोट किया होता है इंटरव्यूज के दौरान। ऑफ कोर्स इंटरव्यूअर ने जरूर नोट किया होता है, बट बीइंग एन इंटरव्यू आपने कभी ये नोट नहीं किया होता है कि क्या पूछा गया है क्या नहीं किया गया है। बट देयर इज इक्वली थिंग, एक रिस्पॉन्स जो आप इमीडिएटली दे देते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट इज लाइकली टू बी अ सस्पेक्ट कि आप ये प्रिपेयर करके आए हैं, यू हैव नॉट थॉट ओवर इट। तो अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है दैट द इंटरव्यूअर इज नॉट बिलीविंग कि आपने जो बोला है, ट्राई टू डिस्कस सम काइंड ऑफ अ सिनेरियो विद हिम
केस स्टडीज उनको बताओ कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ था, तब मैंने ऐसा ऐसा किया था एंड दैट रिजल्टेड इन सच काइंड ऑफ अ बेनिफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो जरूर से देखिए और उसके बेसिस पे कीजिए। एक भी जगह पे अगर उनको डाउट है जब आप ये सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली लेट हिम आस्क यू एन नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड यू नीड टू बी फर्म अक्रॉस विद द आंसर्स दैट यू आर गिविंग। ये एक डेटा सिनेरियो डिस्कशन एक ऐसा हो जाता है जो इनफॉर्मल होता है, क्योंकि यूजुअली इंटरव्यूअर्स ये आपको क्वेश्चन पूछेंगे, टेल मी अ सिचुएशन वेयर यू वर इन अ नेगेटिव फेज बट यू मेड इट पॉजिटिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, या टेल मी अ सिचुएशन जहाँ पे आप बॉक्स में आ गए थे एंड यू केम आउट ऑफ इट। तो ऐसी सिचुएशन जब डिस्कस होती है तो उस टाइम पे ट्राई टू गिव हिम अ सिनेरियो जो एक्चुअल में आपने किया था और वो पॉजिटिव टर्न हुआ था। हाँ, अगर कोई ऐसा सिनेरियो आपके ध्यान में नहीं आ रहा है कि जो पॉजिटिव टर्न हुआ तो यू कैन डेफिनेटली गिव हिम अ डिटेल जो बैकफायर भी हुआ था, बट देन यू आल्सो नीड टू मेंशन देन आई लर्न दिस लेसन कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था जो मैंने कर दिया था एंड दैट इज व्हाट प्रिकॉशंस नाउ आई एम टेकिंग इट अक्रॉस। एक सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव एस्पेक्ट है कि सब्जेक्ट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई एचआर के बंदे हैं जो ये लेक्चर सुन रहे हैं तो उनके लिए ये भी एक बात नोट करनी है कि टैलेंट एक्विजिशन जैसा रिक्रूटमेंट का रोल है, वैसे ही अगर रिक्रूटमेंट में से कोई जंप करके पेरोल में जा रहा है, पेरोल के सवाल आपको पूछ रहा है, या पेरोल में से ट्रेनिंग में जा रहा है, या कोई भी वाइस वर्सा टॉपिक्स में जा रहा है, या कोई भी स्पेशलाइजेशन है, अगर मैं सेल्स की बात करूं तो वो सेल्स एस्पेक्ट की बात करता है, या पीएनएल की बात करता है, या फाइनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अगर कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस जंप हो रहे हैं, वन टॉपिक इज नॉट गेटिंग कंक्लूडेड, इट्स अ रेड फ्लैग कि वो बंदे ने कोई ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, इसलिए वो सिर्फ आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है इसलिए इंटरव्यू कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको वापस जॉब करना ही है वहां पे, तो यू कैन डेफिनेटली गेट बैक एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। जब वो फाइनली एक सवाल तो आपको इंटरव्यूअर कोई भी पूछेगा ही कि आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप कुछ बताना चाहते हैं, एट दैट टाइम प्लीज मेक अ मेंटल नोट कि जो क्वेश्चंस जंप हो गए थे वो आप डेफिनेटली बताएं कि सर एज वी वर डिस्कसिंग दिस आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस, और ये करके आप डेफिनेटली उनको वो सिचुएशंस बता दीजिए ताकि उसको लगे कि नहीं यू आर स्टिल विलिंग टू जॉइन अक्रॉस अ जॉब एंड दिस इज व्हाट यू रिमेंबर्ड एट अ लेटर स्टेज बट यू स्टिल थॉट टू शेयर विद हिम, क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस है। एक कॉन्फ्लिक्ट्स का भी टाइम रेज होता है कि जब आपको क्लियर पता है कि दैट दिस इज समथिंग दैट इज नॉट लीगली वैलिड या कुछ ऐसा है जो ऑर्गेनाइजेशन को हार्म कर रहा है, बट फिर भी हमें वो डेफिनेटली एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि ये उन्होंने बोला हुआ है जो इंटरव्यूअर ले रहा है। बट ट्राई टू टेक इट इन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट कि सर अगर कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉलिसी है डेफिनेटली अडर टू इट, बट दिस इज समथिंग दैट इज नॉट एनकरेजिंग बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ रिव्यूज। तो आप ये डेफिनेटली उनको बता सकते हैं कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल या दिस इज नॉट एनकरेजेबल, बट रादर देन यूजिंग अ वर्ड ऑफ एक्सेप्टेबल मेंशन इट एज नॉट एनकरेज्ड। रीजन बिहाइंड दैट इज दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है, बट एक्सेप्टेबल नॉट एक्सेप्टेबल जब आप बोलते हो कि आपकी क्लियर कट नेगेटिव पिक्चर आ जाएगी, नॉट एनकरेजेबल बोलेंगे दैट वुड क्रिएट अप अ पिक्चर ऑफ अ वरीसम कि आपको उनके लिए चिंता हो रही है। तो इसके चलते आप ये बता रहे हैं ये उनके लिए डेफिनेटली लगेगा। When it comes to the subjective data, तो वहाँ पे एक इवेल्युएशन ऑफ द थिंग्स होता है कि आपने जो भी चीजें उनको बताई है उसकी सिचुएशन क्या है, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अक्रॉस ऑन द लेटर स्टेजेस। साथ ही साथ एक आपके लिए इम्पैक्ट रहेगा कि आपकी फीलिंग्स उसके दौरान क्या रही थी, क्योंकि उनके लिए ये भी एस्पेक्ट जरूर रहता है कि जब आप कोई बंदे को ले रहे हैं तो ही इज कंसर्न अबाउट व्हाट काइंड ऑफ अ रोल दैट यू आर प्रोवाइडिंग हिम, या वो क्या दे सकता है या उसके कलीग्स के प्रति वो क्या कर सकता है। दैट इज व्हाट काइंड ऑफ अ फीलिंग्स एंड एटीट्यूड इज व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट इज व्हाट दे आर आल्सो गोइंग टू लुक इनटू द एस्पेक्ट। तो एक आप फीलिंग्स और एटीट्यूड्स का भी मिक्सचर रखिएगा जरूरत पड़ने पे कि आप क्या फीलिंग्स उनको दे रहे हैं या क्या एटीट्यूड से वो लोग आपको पूछ रहे हैं, या आप एटीट्यूड क्या दिखा रहे हैं, फ्रेंडली एटीट्यूड है या कंपल्सिव है या एडेप्टिव है या आप टास्क ऑब्सेसिव एटीट्यूड से जूझ रहे हैं। So that is definitely going to impact across on a very larger scale for that kind of organization, और आपका इंटरव्यू फ्लो कैसा जा रहा है वो वहां पे डिस्कस डेफिनेटली हो जाएगा। जब आप मीटिंग्स को कंक्लूड कर रहे हैं, जब आप इंटरव्यू को कंक्लूड कर रहे हैं, एक फर्म हैंडशेक सब लोग बोलते हैं कि इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बट क्या करेंगे कि जब ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो नमस्ते के कल्चर में, जब आपका हैंडशेक बहुत फर्म होता है तब आपको लगता है कि नो उनको इंटरव्यू अच्छा लगा है, दे माइट कॉल यू बैक। नमस्ते के कल्चर में ये जज करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, तो उस सिचुएशन में आपके लिए ये जरूर रह जाता है कि आप एनालिसिस करें कि पास्ट में क्या क्या हो चुका है, किस टाइप के सवाल आपको पूछे गए थे, क्या आपने जवाब दिए थे, इज इट समथिंग कि वो लोग जो ढूंढना चाहते थे वो आपने डेफिनेटली देखा है,
इस टाइम पे अगर आपको ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है कि वो क्या ढूंढ रहे थे, अगर इंटरव्यूज में आपको ये समझ में नहीं आया, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क कि सर आपकी नजर में आइडियल प्रोफाइल क्या है या आइडियल कैंडिडेट कौन सा है, तो जिसके बेसिस पे आप उनको बता सकते हैं कि इफ यू आर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग्स कंसीडरिंग माय दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी आप डेफिनेटली उनको बता सकते हैं। द नेक्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिसके बेसिस पे आपको लगेगा कि इंटरव्यू कैसा गया है, वो है प्लान ऑफ एक्शन। 99% केसेस में जहां पे अगर आपको ये बोला जाता है कि माय टीम मेंबर वुड कम बैक टू यू, या अगर आपको बोला जाता है कि वेरी शॉर्टली यू विल बी गेटिंग अ कॉल फ्रॉम आवर एंड, आप समझ सकते हैं कि ये डेफिनेटली एक सिचुएशन है कि जहां पे आप लोगों को इंटरव्यू के लिए फर्दर बुलाया जा रहा है। देयर माइट बी अ सेकंड राउंड या नेगोशिएशंस के लिए आपको बुला सकते हैं। और जब यहाँ पे आप आ जाते हैं तब आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट जरूर फील होगी कि नहीं मैंने ये क्रैक कर लिया है, बट डोंट शो इट टू देम। नेगोशिएशंस अभी बाकी है, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अक्रॉस ऑन दैट बेसिस, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपको लग रहा है कि इंटरव्यू कॉल आने वाला है, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड जेस्चर कि आप सामने एक मेल करें उनको, या उनके पास से जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन आया था उसमें आप डेफिनेटली एक फॉलो अप करें। प्लीज ट्राई टू मेंशन कि आपके वहाँ पे इंटरव्यू करके मुझे अच्छा लगा था, आई फील दैट आई शुड जॉइन योर ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू आर विलिंग टू टेक मी फर्दर। ये डेफिनेटली एक ईमेल या सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, ये सब कुछ आप उनको रियलाइज इसके थ्रू करा सकते हैं। बट प्लीज अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके लिए पॉसिबल है, तो डेफिनेटली मना कर दीजिए कि ये नहीं कर सकते आप। रीजन बिहाइंड दैट इज दैट उनको ये इम्पैक्ट जरूर ना पड़े कि आप उनको वहां पे जाने के लिए यू आर वेरी मच ईगर, तो जिसके चलते क्या है ना कि उन लोगों के लिए ओपन माइंड रहे कि आपके साथ डिस्कस वो लोग कर सकें। और अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट प्रीवियस इवेंट्स की जब आप नेक्स्ट टाइम इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं या फर्दर नेगोशिएशंस के लिए जा रहे हैं या फर्दर डिस्कशन के लिए जा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उनको बताएं कि दिस वाज व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड दिस इज व्हाट आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन। मैं ये बताना आपको लास्ट टाइम भूल गया था, but that is also going to give them an impact that you thought over between these two kind of interviews or negotiations, that you thought over about that company and you are still interested in working about it. So that is what is going to give them also an impact. अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, you can definitely put down the questions. The details from my end is over, but there would be n number of questions that you would be raising across. I am very much fine to take all the questions that you are having. Over to you. Yeah. Can I ask a question? Yeah, sure. Go ahead. Yeah. So you have very well explained to the students that how they should prepare themselves to face the interview. So that was really good guidelines from your side. I would just like to know if you can just guide them regarding the first step, that being shortlisted or being called for the interview, one of the most important aspects is the resume being selected by the HR or by the company. So how can they put in efforts to make sure that their resume is on point so that they at least get a call from the company? Okay. See, if I personally share my experience, I have conducted around 35,000 of interviews throughout my career. The first and the foremost thing that we look after in the CV is, एक जब आपका CV आता है, मेल आता है या आप हार्ड कॉपी भेजते हैं, हम लोग सबसे पहले उसमें सीधा कीवर्ड्स ढूंढते हैं। If I am looking for a recruiter, is it possible कि इसने टैलेंट एक्विजिशन का रोल किया है या नहीं किया हुआ है, रिक्रूटमेंट कितना किया हुआ है, फील्ड वर्क करने को तैयार है या नहीं, क्योंकि रिक्रूटमेंट में कुछ पोजीशंस ऐसी है जिसमें फील्ड वर्क कंपलसरी रहता है, तो इज इट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर हिम और हर टू डू, ये हम लोग डेफिनेटली सबसे पहला चेक करते हैं। जैसे ये कीवर्ड्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए, वी ट्राई टू एनालिसिस कि उसने क्या क्या किया होगा, आईटी कंपनी में किया है तो आईटी की क्या स्किल सेट्स था, वो ऑर्गेनाइजेशन और हमारे बीच में क्या डिफरेंस है, वेदर ही वुड बी एबल टू वर्क आउट और नॉट। तो हम लोग सबसे पहले तो कीवर्ड ही उसमें आइडेंटिफाई करते हैं। कीवर्ड के साथ साथ एक सेकंड थिंग हम लोग ये चेक करते हैं कि वो लोकलाइट है या नहीं है, क्योंकि जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया, देयर आर टू एस्पेक्ट्स। अगर लोकलाइट है तो ऐसा मैं जरूर नहीं बोलूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल इम्पैक्ट की बात अलग है और फैमिली इम्पैक्ट की बात अलग है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो आपको कैरियर के थ्रू मिलेगा वो भी एक इम्पोर्टेंट है, फैमिली को टाइम देना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जरूर ये एनालिसिस करते हैं कि जो बंदा हमारे वहाँ पे अप्लाई कर रहा है वो टाइम दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। यूजुअली ये सिचुएशन इसलिए देखा जाता है क्योंकि देयर आर वेरी अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस जो कि क्लाइंट के पास से एक्सपेक्टेड होता है, जिसके चलते कभी कभी वर्किंग आवर्स एक्सटेंड होते हैं।
स्टैंडर्ड प्रैक्टिस भले बोलता है कि 8 घंटा या 8.5 घंटा या 9 घंटा डिपेंडिंग अपॉन द ब्रेक टाइम इज द मैंडेटरी थिंग, बट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट को भी ये कॉल लेना पड़ता है कि ये कोविड की सिचुएशन है तो 12 घंटा भी काम करवाने का गवर्नमेंट परमिशन दे रहा है. तो दैट इज व्हाट वी नीड टू एनालिसिस कि जो लॉ बोलते हैं उसके बाहर भी कभी जरूरत पड़े ये कर रहा है या नहीं कर रहा है. ये सारी चीजों को देखते हुए माय एडवाइस ऑन द रेज्यूमे फ्रंट इज ट्राई टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर जो आप लोग कर सकते हो. डोंट पुट समथिंग इन अ रेज्यूमे व्हिच यू आर नॉट अवेयर. एचआर के एंगल से पेरोल के बारे में अगर आपको पता है तो प्लीज मेंशन दैट आई नो ओनली पेरोल. लेबर लॉज या आईआर मत लिख दीजिए, क्योंकि लेबर लॉज में भले 4 एक्ट डेफिनेटली पेरोल के आएंगे कि पीएफ आएगा, ईएसआईसी आएगा, बट अगर आप लिख देते हैं कि लेबर लॉज आपको पता है तो दैट इज गिविंग अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ इम्पैक्ट कि उन सब के लिए ये सिचुएशन होगी कि दैट दे वुड आल्सो कमिंग अक्रॉस कि कैसे करें. तो जो आप डिटेल्स लिख रहे हैं वही डिटेल्स आप शो करें और वही नॉलेज आपको पता है ये दिखाएं. That is equally important. Yeah. Also, And, yeah, ma'am, please, go ahead. Please go ahead. No, Rucha, you please go ahead. Okay. Yeah. So coming to that point of being very transparent with the recruiter and with the company, here one of the anonymous attendees is asking that if they are actually very transparent in the interview and letting them know that they don't know this particular skills, so won't that jeopardize of them getting selected in the interview? Trust me, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है ना, दे ऑल्सो हैव अ सेकंड ऑप्शन इन द माइंड कि अगर ये नहीं होगा तो मैं इसको यहाँ पे सेट करने की कोशिश करूंगा या करूंगी. दे ऑलवेज हैव थॉट अबाउट अ सेकंड पोजीशन फॉर यू. अदरवाइज वो पहले ही आपको रिजेक्ट कर देते, वो आपको बुलाते ही नहीं है इंटरव्यू के लिए. बिकॉज आप समझ लो कि एक पोजीशन ओपन है. इंडिया की सिचुएशन इस वक्त ऐसी है, एक पोजीशन पे 50 CV आते हैं. 50 CV में से अगर मैं स्क्रूटिनाइज करके 5 को बुलाने के लिए बोलता हूँ कि 5 लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे, तो आई हैव थॉट अक्रॉस बिहाइंड दैट कि ये 5 लोगों के पास मैं क्या करवाना चाहूंगा. दैट इज व्हाट इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि ये 5 लोग जो भी आ रहे हैं उसके लिए मैंने कुछ ना कुछ सोचा है. तो अगर आप बता देते हैं कि मुझे ये नहीं पता है तो दैट डेफिनेटली डज नॉट गिव्स अ नेगेटिव साइन. दैट गिव्स योर हॉनेस्ट अप्रोच कि नहीं पता है तो इसने बता दिया है. आप सोचो कि अगर आप ये बोल दोगे कि मुझे पता है एंड व्हेन यू गेट लैंडेड इन द जॉब and when that aspect is given to you to do, और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो क्या सिचुएशन होगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, जो शायद उनको फाइनेंशियल लॉस में भी लेके जाती है. प्लस आपकी इमेज वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगी कि ये बंदे ने झूठ बोल के इंटरव्यू ले तो लिया. थर्ड एंड द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज कि आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जब होगा तब नेगेटिव रैंकिंग भी होगा. यू वुड आल्सो बी फीलिंग डिमोटिवेटेड, जिसके चलते ये दिक्कत ज्यादा बढ़ेगी. इट्स बेटर टू गिव अ वेरी क्रिस्टल क्लियर पिक्चर कि मुझे ये नहीं पता है, rather than raising a career aspect कि जो पीछे से आपके लिए black spot ना बन जाए. That's a very good answer. Thank you, sir. Yeah. So Monica ma'am, you had a question. Yeah, Rucha, I was just introspecting the way Dr. Kavi articulated, because I was just trying to summarize and compile in my thoughts that what he said. Generally, when as a student we appeared for the interviews in our early stage of hunting for a job and all, I remember we kept in mind 3 aspects, Dr. Kavi, which you very well articulated and structured. One was the technical interview, and second was stress interview, and third was behavioral interview. So the thing is, like now 20 years down, when I was going for interview, maybe technical was given 80% of preference and 20% was the other aspect which was coming under stress or any other kind of thing. So along with that, I feel that today the proportion has been reversed, because yes, when you exactly. see Google, when you see KPMG, when you see world's best organization, and in Oro also we are very particular about the psychometric testing and the behavioral assessment that we do, and we don't want any wrong person to enter and spoil the culture. So all these are the concerns of organization. So that's why they're little conscious of taking up those people who may be little low on IQ, but they don't compromise on EQ. This is what you rightly said, and that's why they are holding a stress interview, behavioral interview. And out of my little experience, I personally feel that the students who are underconfident and those students who are overconfident, they are actually struggling hard for the jobs. But the students who are expressive, who are truly confident,
they are not facing much challenge and problem, irrespective of their competency and skill sets which they are holding, right? So as you rightly said, that the organizational perspective has changed for the selection of the person or a professional. As you rightly said, on the spot they may not appoint you, but you are there in the back of their mind that maybe after 6 months or so or 1 year or so, they'll surely look after you and look up to you based on your quality that you have projected, your behavior and attitude that you have projected in the interview. So Exactly. I personally feel all these aspects are very, very important, because our students, generally students across the world, they get demoralized that job nahi mila, ya us appropriate package nahi mila, ya I didn't get that position which I was suitable for or deserving for. But you might be thinking that you are deserving, but company should equally think that you are deserving for that particular position. Yeah, So, give you two aspects yeah. here. The thing that you rightly said is that the most people that are struggling are either underconfident or overconfident. If Yes. the overconfident, I would definitely advise if you are feeling that you are 100% sure on overconfidence that you'll be able to deliver what you are committing, there is no harm in being overconfident. But for the underconfidence, I would definitely like to advise that once the interview gives you a comfort zone to come across, overcome of fear. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं है ना कि घर पे भूखे बैठे रहने वाले, कहीं और मिल जाएगी. मैं समझ सकता हूँ. इवन एज अ स्टूडेंट व्हेन आई फर्स्ट वेंट फॉर द इंटरव्यू, इवन आई वाज आल्सो अंडर द स्ट्रेस कि मैं कहाँ इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं वहां पे सेट हो पाऊंगा या नहीं. आई वाज आल्सो रिजेक्टेड मल्टीपल टाइम्स, बट दैट डिड नॉट मीन कि आपका कैरियर नहीं है. ट्राई टू लर्न. आप इंटरव्यूज जितने दोगे ना तभी आपको समझ में आएगा. बीइंग अ स्टूडेंट यू कैन इवन एक्सपेक्ट कि आप 100 कंपनीज में इंटरव्यूज दोगे, 100 में से शायद 1 या 2 ही आपको ऑफर करेगी. बट ट्राई टू लर्न फ्रॉम रिमेनिंग 98 कंपनीज कि आप जो इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं वहां पे किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं. गेट प्रिपेयर्ड योरसेल्फ ऑन दोस क्वेश्चन. क्योंकि आज वो बंदा बैठा है लेट्स से टाटा मोटर्स में, कल वो जाके बैठेगा फोर्ड मोटर्स में, बट फोर्ड मोटर्स में भी वो यही सवाल पूछने वाला है. यू आर नॉट श्योर. आप 1 साल बाद फोर्ड मोटर्स में इंटरव्यू देने गए और वही इंटरव्यू ले रहा है. When you show him that you have improved a lot, that is going to impact upon the next future of yours. वो कंपनी के साथ आप कैसे काम करेंगे वो वहीं पे इम्पैक्ट होगा. So it's not a matter of confidence. It's only the matter that how fluently you are going through the flow of the interview. Yeah. Conclusion भी equally important है, क्योंकि जब एक कंपनी ने आपको बोल दिया है that they are going to get back to you, if it was on a very positive note, handshake है तो ठीक है, नहीं है तो जो आपका फ्लो हुआ था उसके बेसिस पे आप एनालिसिस कीजिए that can you expect an interview call. हाँ, एक और पॉइंट में डेफिनेटली आपको बताना भूल गया कि आपका जो फॉलो अप कॉल है या फॉलो अप ईमेल है, डोंट डू इट इमीडिएटली. टेक एटलीस्ट 1 or 2 days for them also to come back. अगर वो लाइन में आपको बोल देते हैं that we are yet to conduct further interviews, वहीं पे आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि no you are not selected there. वो रेड सिग्नल है, वो ग्रीन सिग्नल नहीं है. वो वहीं पे आपको पता चल जाएगा. And another point is many times it has been seen that students go with superficial understanding and knowledge. I think that's a most dangerous thing. If I'm going for a marketing profile interview, so I need to know at least the terminologies and the nomenclatures which are used in an industrial setup or corporate setup for the position for which I'm going. So many times, because of our superficial understanding, we keep on building stories and answers on the spot. As you rightly said, be honest and say that I'll learn this terminology. Maybe I don't know presently, but maybe in future I'm curious to learn about it. That's one attitude. But I think when they start talking on those aspects without understanding and without actually knowing the true aspect and fundamental of that concept, then HR people are, they're very smart enough to identify and find out. So what's your call on this, Dr. Ravi? I'll even use up a specific terminology. For a pharma industry, there is a very peculiar term, the GMP. Now, when you say about GMP, that has 2 literally meanings for the pharma industry itself. One is gross molecular pharmaceutical. That's a very technical term. And then there is this good manufacturing practice. That is also a very technical term. Now, if you are very much aware that the question has been raised that what are your aspects and what are your belief on GMP, in place of good molecular formula, you are using the good manufacturing practice. GMP पता है मुझे GMP है क्या वो ही नहीं पता है. मैं अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वहीं पे खत्म हो गया है. Then they would never call you back also again.
तो जो टर्मिनोलॉजीज आप जानना चाहते हैं यहाँ पे आप डेफिनेटली उनको पूछ लीजिए, सर बाय जीएमपी व्हाट डू यू मीन, इज इट गुड मॉलिक्यूलर फार्मूला या सॉरी गुड मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिकल्स और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, डेफिनेटली आस्क अक्रॉस, पूछने में कोई हर्ज नहीं है. That would give them an idea that you are trying to understand what was the question और उसके बेसिस पे आप जवाब देना चाहते हैं. If they say that it was a good manufacturing practice, आपको नहीं पता है तो बता दीजिए कि सर good manufacturing practice के बारे में नहीं पता है, but I am very much aware about good molecular pharmaceuticals. तो शायद उनको ये पता चले कि वहां पे भी मैं इसको डाइवर्ट कर सकता हूँ. So that is what they would also be looking into. But the question is that if you are not understanding the question, if you are not understanding the terminology, यहीं पे बात खत्म हो जाएगी. और इसीलिए हम लोग इक्वली बोलते हैं कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट ऑर्गेनाइजेशन इज इनटू एंड ट्राई टू एनालाइज कि वो लोग क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. True. Another important point I think you must emphasize on, because as an expert I think that will be good if it would come from you. Like today there's a trend of Skype interviews and telephonic interviews. So I'm sure there are some professional protocols, code of conduct and maybe professional etiquettes that we need to follow as an interviewee. So can you give them some good tips for telephonic interviews and Skype interviews? Yeah. See, on any kind of interviews, whether it's going to be a Skype, it's a personal interview or it's a telephonic interview, the most and the prominent aspect is to listen. वो क्या बोलना चाहते हैं वो आप समझोगे नहीं तो वो आपको दोबारा अप्रोच करेंगे. So whatever they want to know, you need to first hear it across and then come across with the answer. This is what could happen across. When it comes to the Skype calls, ये थोड़ा एक typical हो जाता है. When you are not in front of them, you won't be able to project across what thoughts you are having in mind because this is a virtual call. And this is the scenario that is now happening on a very large scale क्योंकि कंपनी भी ये सोचती है कि आप कहीं से आ रहे हो, एक जगह से आप इंटरव्यू देने आ रहे हो, आपका आने जाने का टाइम वेस्ट करने उससे बेटर है कि स्काइप कॉल या आजकल तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गया. So this kind of a technology has reduced some of the burdens on the talent acquisition team, जो recruitment team है उनके ऊपर. तो वो लोग क्या करते हैं कि पहले एक बार आपका एनालिसिस ही कर लेते हैं कि आप क्या उनका आपकी पर्सनालिटी है या what are your traits. So try to be as formal as possible even on Skype like you are going to be happening on the personal interview. टेलीफोनिक कॉल पे आप कैसे भी बिहेव कर रहे हैं वो उनके सामने नहीं दिख रहा है. But when it comes to the Skype or the personal interviews, that is equally important. So behavior of yours is also equally important along with the dressing sense. Along with that is important is that how you are portraying your answers. जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप समझिए कि वो आपको यही Skype पे देख रहा है कि what you are trying to give and what kind of information you are trying to give. वो आपको देख पा रहा है. Like he is conducting your virtual interview in a personal interview situation. तो जो भी आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं ट्राई टू कंडक्ट इट इक्वली एज व्हाट इज अ पर्सनल इंटरव्यू. पीआई में जैसे आप ड्रेसिंग सेंस के साथ जा रहे हैं, जैसे आप वहाँ पे जाके डिक्लेरेशंस दे रहे हैं, जैसे आप उनके साथ कंडक्ट कर रहे हैं, दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट. तो आप जो पीआई में करते हैं वही आप स्काइप पे करिए. डॉक्टर कवि, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक दैट विल बी क्वाइट यूजफुल टू आवर स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हम इंटरव्यू के लिए रेडी होते हैं वी गो विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. So at times we provide over documentation to the interviewers which is not relevant to me or to that particular job profile. So what is your suggestion to our students, like what kind of preparations they need to do in terms of their filing of documentation and what should they keep with them, because it should not be under information that they ask for something and the paper is not with you, or it should not be over information that you are just providing them randomly whatever you feel like providing them. So what do you want to say on this? Yeah. See, what you mention in your CV is equally important than what you are portraying yourself. अगर आप CV में कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो आप पोर्ट्रेट नहीं कर पाएंगे या डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, मत लिखिए. आई एम नॉट श्योर, बहुत लोग ये भी लिखते हैं कि मेरे में लीडरशिप स्किल्स है, बट व्हेन वी आस्क देम टू पोर्ट्रेट अक्रॉस कि आप टीम को लीड करते हैं, कितने लोगों की टीम को आप लीड कर रहे हैं, आंसर आता है 1 or 2 people. Then you don't have that kind of a huge leadership skill. 2 लोगों को लेके लीड करना, that's not considered as a leadership skill. तो ये पुट मत कीजिए. Make it as a team player activity. बताइए कि मैं एक टीम के साथ काम करता हूँ. See, after all, कोई भी बॉस का ऐसा एटीट्यूड जरूर नहीं रहेगा कि बॉसिज्म की जगह पे लीडरशिप की स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करें. आप बॉसिज्म करेंगे और लीडरशिप स्किल्स दिखाएंगे तो ऑफ कोर्स अगर दोनों में से मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं लीडरशिप को स्किल करूंगा. क्यों? क्योंकि बॉसिज्म इज एन एटीट्यूड कि मैं करने की जगह पे मैं मेरे बंदों से करवा लूंगा, आप मुझे दे दो. लीडरशिप इज की अगर वो नहीं कर पा रहे तो मैं कर दूंगा, आपका काम अटकने नहीं दूंगा.
दैट इज व्हाट इज नाउ द ऑर्गेनाइजेशंस आर लुकिंग फॉर। क्योंकि आज का एटीट्यूड में ये जरूर है कि अगर मैं 100 लोगों से काम करा रहा हूँ तो कंपनी ये सोचेगी कि मैं 100 की जगह 90 से काम करा सकता हूँ या नहीं करा सकता हूँ, ताकि 10 की सैलरी बच जाए तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। दैट इज व्हाट इज द एस्पेक्ट दैट दे आर लुकिंग आफ्टर। तो इसके चलते आप जो भी पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं रेज्यूमे में, पुट इट इन अ वेरी परफेक्ट मैनर। जो भी आप डिटेल्स लिखे वो डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं या कर सकते हैं, ये डेफिनेटली उनको एंश्योर कराएं। कर चुके हैं तो ज्यादा बेटर है, कर सकते हैं तो उनको बताएं दैट आई हैव नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड इट बट आई कैन स्टिल गिव दिस काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन टू योर कंपनी। Yeah, Rucha, it's over to you now for any more questions if you have in Q&A. Yeah. So there are some questions in the chat box regarding negotiation. They have been asking that particularly two things regarding negotiations. One is the salary negotiation. How are, like, if an interviewer asks you that what is the expectation for the salary package, so what should you answer? One thing. And the second thing is regarding the contract period. If they are offering you a particular contract period to sign, so can you negotiate for the same thing or not, or how to do it? Okay. The second question is a bit typical. It would require a bit kind of a lengthy discussion, but I'll still give you both the ideas. On the front of the negotiation, when the person has been called for the interview, they have already gone through the budget that they have. They would definitely check across that if they are able to offer you X number of salary or not. ट्रस्ट मी, नेगोशिएशन के टाइम पे ये भी आएगा कि आप 50,000 की करंटली सैलरी ड्रॉ कर रहे हो, आपको ये बंदा सामने से बोलेगा कि सर मैं तो 25,000 का ही बजट रखता हूँ। तो आपको वहीं पे लगना चाहिए कि ये बंदे ने सिर्फ टाइम पास करने के लिए या तो फिर आपके पास क्या क्या नॉलेज है उसे वो खुद सीख ले, इसके लिए आपको बुलाया हुआ। क्यों? क्योंकि अगर 50,000 का आपका बजट पहले से है, करंटली कोई 50,000 का 25,000 में तो कोई काम करने नहीं आएगा। दैट इज वेरी सेल्फ इज अ रेड फ्लैग कि आपको फर्दर राउंड्स के लिए नहीं कॉल आएगा। हाँ, अगर आपका 10-12 हजार का सैलरी है और वो अगर आपको बोल रहा है कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, उन्होंने पहले ही जब जॉब पोस्टिंग की है या कहीं पे भी है तो दे वुड डेफिनेटली मेंशन कि उनका बजट 20,000 25,000 XYZ अमाउंट है। तो जब वो अमाउंट आपके पिक्चर में क्लियर माइंड में है, डोंट आस्क फॉर मोर हायर सैलरी। इंडस्ट्री प्रैक्टिस इज 15 to 20% इज मैक्सिमम दैट हाइक यू विल बी गेटिंग फ्रॉम योर करंट सैलरी। तो उससे ज्यादा अगर आप मांगोगे तो वो उस सिचुएशन में आपको जरूर मिल जाएगा जब आपने डेमोन्स्ट्रेट ही ऐसी स्किल्स की है कि दे आर नॉट गोइंग टू लुक फॉर एनी कैंडिडेट। उस सिचुएशन में आपको मिल जाएगा। बट इफ इट इज अ सिचुएशन कि नहीं, आप वहां पे जाना चाहते ही हो और आपके पास ऑप्शन भी नहीं है और आपको शायद सैलरी नेगोशिएट भी करनी पड़ रही है, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि सेम सैलरी पे ज्वाइन कर ले। उससे बिलो में डेफिनेटली मत जाइए। क्यों? क्योंकि दैट्स वन काइंड ऑफ एन एक्सप्लॉयटेशन। जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ एक्सप्लॉयटेशन से, दैट आल्सो टेक्स अप विद द सेकंड क्वेश्चन कि जो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन मेंशन करने की बात है। कहीं पे ये भी होता है, कुछ आईटी कंपनी में डेफिनेटली होता है 1 साल 2 साल 1.5 साल 6 महीने का वो लोग कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन कराते हैं। व्हाई दे गेट इट साइंड अक्रॉस इज यू नीड टू इंटरव्यू ऑन देयर एस्पेक्ट्स आल्सो। उनके लिए ये मैंडेटरी जरूर है कि मैंने आज एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, मेरा प्रोजेक्ट टाइमलाइन है 6 महीना या 1 साल या 1.5 साल, मुझे वो प्रोजेक्ट पे उन्होंने डेप्यूट किया हुआ है। तब जाके सिचुएशन ये आएगी कि 3 महीने बाद मैं ये उनको बोलूं कि मैं कल से नहीं आ रहा हूँ या मैं 1 महीने की नोटिस सर्व कर रहा हूँ। नाउ 1.5 साल का उनका प्रोजेक्ट है, आप 3 महीने बाद जा रहे हो, तो कोई भी बंदा नया आपकी जगह ज्वाइन होगा तो उसको पहले 3 महीने का तो ग्राउंड वर्क रिक्रिएट करना पड़ेगा। उनका प्रोजेक्ट डेडलाइन डिले होगा। इसके लिए आईटी कंपनीज ज्यादातर आजकल ये कॉन्ट्रैक्ट्स में उतरती है। लीगली इट हैज नो एनी ग्राउंड्स ऑन द फ्लोर कि आप जब किसी के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं, unless and until it is signed by both the parties and both the parties have agreed it on the notarized stamp paper, तब तक के लिए ये कोई लीगली वैलिड नहीं माना जाता। बट ऑफ कोर्स आप ये नेगोशिएट उस टाइम पे जरूर कर सकते हो दैट इफ आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट आई वोंट लीव इट इन द मिडल बिफोर लीविंग। अगर आप छोड़ना चाहते हो तब भी आप सामने दूसरी कंपनी में डेफिनेटली ये बता दो कि मैं इतने दिन के बाद ही ज्वाइन कर सकता हूँ बिकॉज दिस इज व्हाट इज माय प्रोजेक्ट स्टैंड, आई कैन नॉट लीव इट इन मिडल। जब आप एथिकली ये दिखाते हैं तो ट्रस्ट मी सामने की कंपनीज भी ये सोचेगी कि ये बंदा बीच में प्रोजेक्ट छोड़ के नहीं आना चाहता है तो मेरा भी बीच में प्रोजेक्ट छोड़ के नहीं जाएगा। तो अगर उनके लिए ये स्किल्स या जो भी आपका इंटरव्यू का प्रोसेस था जिसके दौरान आपका सिलेक्शन हुआ है वो अगर इक्वली इंपॉर्टेंट है तो दे विल डेफिनेटली वेट फॉर यू टू जॉइन द प्रोसेस। कुछ कंपनीज ये भी होगी कि जिनके लिए ये वेट करना डिफिकल्ट होगा तो दे विल इवन आस्क यू टू जॉइन अक्रॉस ऑन अ एडवाइजरी बेसिस या पार्ट टाइम बेसिस के लिए भी ऑफर करते हैं। ये डेफिनेटली यू कैन लुक इनटू इट।
One last question, Dr. Kavi. Like, as an interviewer yourself, you might come across thousands of candidates when you are taking an interview for a particular position. So, what an interviewer looks for in the candidate, like the basic differential value that the students or the professional can portray to outstand other candidates, like because what we see is now there are so many sample answers available online that they prepare a certain kind of answers, a certain kind of behavior. But when an interviewer is looking at so many candidates, we know that of course this is very well prepared and robotic. So we do not like that kind of behavior. So can you just throw some light on this aspect and guide the students on how to take it? Okay. I can see that Miss Anjali has mentioned that they have few questions. So I would still be willing to take further questions, but if in case it is not permissible, you can send across the email to me. I'll reply back to all of those questions. I have no objection on that. To answer up this specific question, as an interviewer, a person would expect honesty on the very primary work. आपको पता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कंपनी के पास 6 महीने का टाइम है आपको सिखाने के लिए है, राइट? आज मैं कोई बंदा को ज्वाइन कराता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट कि वो डे 1 से मेरे लिए 100% परफॉर्म करेगा, अनलेस एंड अंटिल इट्स अ स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनके लिए फंडिंग इज एन क्रिटिकल एस्पेक्ट. तो अगर कोई ऐसी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है या तो फिर कोई एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, दे गिव यू इक्वली अ टाइम टू सेटल अक्रॉस. हाउ सून यू आर गोइंग टू लर्न अप दैट थिंग, हाउ सून यू आर एडेप्टिव, आप कितना जल्दी ये एडजस्ट करने को तैयार है कि वर्किंग कल्चर क्या है, आप कितना जल्दी ये एक्सेप्ट करने को तैयार है कि मुझे ये नहीं पता है तो मैं सीखने को तैयार हूँ, और वो सीखने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, कितना जल्दी आप वो सीख लेते हैं. दिस ऑल पॉइंट्स आर बीइंग थॉट अक्रॉस व्हाइल हायरिंग अ फ्रेशर कैंडिडेट. फ्रेशर से मेरा मतलब है मैं किसी भी स्टूडेंट को हायर करता हूँ या कोई भी इंटरव्यूअर हायर करता है, ये चीजें डेफिनेटली चेक करता है. सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हॉनेस्टी. क्यों? क्योंकि वहां पे जब आप बताते हो कि मुझे ये नहीं पता या सर ये मैंने, देखो एक लाइन पे तो मैं ये भी बोलता हूँ कि एक बंदा आई हैव टेकन अक्रॉस इन माय टीम इटसेल्फ, तो रिसेंटली मेरे साथ काम कर रहा है, उसने क्लियरली बोलता था कि सर लेबर लॉ के एग्जाम में मेरे सिर्फ 35 मार्क्स आए थे क्योंकि मुझे लेबर लॉ पसंद नहीं था. नहीं पसंद है तो आप बता दो दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, तो मैं उसको उसके हिसाब से ट्रेन करूंगा. क्यों? क्योंकि जो भी आपका रिपोर्टिंग हेड है वो एक बार आपके साथ डेफिनेटली एंश्योर करेगा कि वो आपके साथ बात करे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स डाउन द लाइन आके आपसे डेफिनेटली बात करेगा दैट व्हाट हैव यू लर्नड, आप और क्या चाहते हो, और 6 महीने के बाद जब आपका प्रोबेशन खत्म हो रहा है उसके लिए मुझे क्या स्किल्स चाहिए और मैं उसको कैसे आपको सिखा सकता हूँ, उसके लिए भी जरूरी है. तो डेफिनेटली आपके साथ बात करेगा. तब अगर आप जाके उसको बोलोगे कि नहीं मुझे ये नहीं पता है, तब भी वो आपको सिखाएगा. बट अगर आप ये बोल दो कि मुझे ये पता है, तो वो बंदा ये निश्चिंत हो जाता है कि नहीं इसको पता है तो मैं उसके भरोसे छोड़ दूंगा, और जब ये बैकफायर होके आएगा तो डिफिकल्टी बहुत ज्यादा पड़ेगी. कैरियर के, आपके कैरियर के लिए भी बढ़ेगी, उस बंदे के लिए भी बढ़ेगी और कंपनी के लिए भी बढ़ती है. इसके चलते इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू बी मोर हॉनेस्ट रादर देन अप्रोच. एक और चीज आप ध्यान में रखिए कि आपका एडेप्टिव एटीट्यूड है कि आप सिचुएशंस को जल्दी एनालाइज कर रहे हैं, सिचुएशन के साथ जितना जल्दी एडजस्ट हो सकते हैं, दैट्स आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. आज अगर हम लोग बोले आप 1 महीने पहले की मैं अगर स्पेसिफिक बात करूं, इफ आई से अबाउट 23rd of March, किसने ये सोचा था कि हम लोग 1 महीने तक घर में बैठेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है. वी गॉट एडेप्टेड टू इट. 1 महीना घर पे बैठने के बाद भी आप एडेप्ट हो गए कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, द बिजनेसेस आर वर्किंग ऑन रिचुअल्स, काम चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि बंद हो गया है, राइट? तो ये सिचुएशन कभी नहीं होनी चाहिए. यू नीड टू गेट एडेप्टिव टू द सिचुएशन. ये जब आप दिखा देते हैं तो इंटरव्यूअर आपके लिए डेफिनेटली फॉल होगा. नहीं ये बंदा सिचुएशन से एडेप्ट हो रहा है तो लेट मी गिव हिम अ चांस. एटीट्यूड, एडेप्टिव कल्चर एंड हॉनेस्टी इज इक्वली इंपॉर्टेंट. नॉलेज आपके पास है, नहीं है ऐसा नहीं है, बुकिश नॉलेज है, मैं मानता हूँ. प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है. प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप आओगे तभी आप सीख पाओ, और वो प्रैक्टिकल अप्रोच आपको सिखाने के लिए हम लोग लेते हैं आपको, और जूनियर पोजीशन पे इसीलिए लिया जाता है ताकि कुछ गलती हो तो डाउन द हायरार्की लेवल रिजॉल्व हो जाए. तो आपके पास सीखने का मौका है, बट नॉलेज आप डिस्क्लोज कर देते हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. पता चला कि एचआर के इंटरव्यू के लिए आप गए सेल्स के नॉलेज के साथ, तो दैट्स आल्सो नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट. अब चूज कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं और उसके बेसिस पे इंटरव्यूज के लिए अप्लाई कीजिए. ट्रस्ट मी, क्रैक जरूर हो जाएगा.
And Dr. Ravi, जो आपने एक point बोला, you raised one very important point that everyone don't know everything. When you go for an interview, you know certain things, you have limited understanding of some specialization, you have thorough understanding of some specializations in which you specialized on. But I think it is always being taken care of by interviewers by asking me, like, tell me 2 of your favorite subjects. And then they start asking you questions. And then it becomes embarrassing if you say that my favorite paper is mathematics or physics. And then when they're asking you questions and you are blank with no answer. So I think that way you need to be careful. That's why I'm emphasizing a lot on superficial understanding. Because knowing a subject in depth and having understanding of it at a fundamental level, these are 2 different things. So what do you say about it? Yeah. It's exactly true. I'll give you my background itself. I have studied from London. I have not studied from India. So my HR bookish knowledge was limited to London knowledge. India is completely a different system of labor practice. And in the first interview itself, I got asked about how the DA is calculated. I was very much blank on it. I immediately said, sir, first of all, I would like to understand what is a DA. That time the interviewer realized that I have not got my education from here. I have got my education from abroad. So the interviewer immediately asked me that if you don't know, then how would you be able to, how soon can you learn it across, or how would you be able to demonstrate it? I immediately said that, sir, if you are getting me landed on this job, I'll immediately share across my hand in this of the aspects, which I am very much proficient on it. And trust me, the interview got shifted on those aspects. And as I knew the knowledge and as I shared with him that I would be able to work on this profile, I got cracked in that interview and I got that job. But yes, now it's my responsibility that the core fundamental question that was asked to me was to how are my proficiency and my knowledge on labor laws. Now that's equally important for me to learn across. I mentioned that I would be able to do the recruitment for you and he took me on the job. And that was a great aspect and the generous thing that he had done. I very much appreciate his aspect. But he gave me an equal opportunity to learn across the labor laws also. And yes, when I had mentioned that I don't have this kind of a knowledge, I was always very much open to the knock up his office door and ask him, sir, that I did not know this. I had mentioned it at the interview. Can you please guide me? If I had mentioned it that yes, I am very much proficient on labor laws, he would have expected me to know all of those things. If I am not aware about it, then he would definitely not support me. But yes, when I had mentioned that I would be able to do the recruiting for you, he was definitely on a very much front foot that recruitment is now your aspect. I need the answers to be done. So rather than giving a superficial idea that I am very much aware about these things, be very much descriptive that this is what I'll be able to do. Don't just give the idea that I'll be able to do rather than demonstrating it. True. Yeah. Rucha. All right, Dr. Kavi, I think we have already shared quite a few takeaways for the students. And there are few more questions, but because of the timing issue, probably we can help them through emails for answering the questions. And I would like to move forward to Mr. Kishore Sharma for vote of thanks. Please, sir. Thank you, Rucha. Dr. Kavi, it was such a wonderful session, and I'm sure the tips which you have shared with us and the experience and the knowledge which you have shared is going to help the students, helping them for the interview, and not just helping them but to crack the interview. It was such a wonderful session. I would like to take this opportunity to thank the management of our university, management dean sir, registrar sir, and the guiding force, Dr. Monica ma'am, and the entire team, IT team, which has actually helped us in facilitating this entire session with us, and Rucha for being such a good partner and facilitating the entire session. Dr. Kavi, it was such a wonderful session, and we look forward to have you at our campus sometime once the situation gets normalized. So have face-to-face, one-to-one chat with you, and can motivate our students on a personalized basis. Sure. So again, I take this opportunity to thank everybody for sharing your experience, your time with us. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Kavi. Thank you so much. Thank you, See you on Dr. campus Kavi. now. Thank you, Rucha. Thank you, Mr. Kishore, for the wonderful opportunity. Thank you, sir. Thank you. Thank you all. Thank you.